Hello and welcome to The Fair Unfair Life, a podcast where real lives, real choices, and real talk come together to inspire, reflect, and connect. I'm Krati, a transformation manager by the day and a storyteller. No, a story listener. I love to hear stories by heart that makes me that just bring the powerful truths and the profound personal journeys to life. And I'm joined here by Monica. Monica, do you want to give a quick introduction to yourself? Hi, thank you so much, Kriti, for having me here. Myself, Monica, I'm a tarot card reader currently, and I'm into mindfulness and meditation. I conduct these transformative workshops, and I have a 27 years of work experience in corporates. The journey has been interesting. I'm from Bombay. I have two sons, one four-legged, one two-legged, and I'm here in Bombay. One four-legged. Tell me about that. I'm intrigued. My pet name is Junior. I'm his Ah, biological. And Vismay is my son, my biological son. So, yeah, life has been interesting oh, with these two. And right now, oh. Junior taking away all the attention. So, he's the little child right now in our house. Though it's been 2 years, he's been with us. But he's transformed and changed our life completely. That is just. I mean, I know a lot of pet lovers, and I think it's just how close you grow to them, and how quickly they become a part of your life. So, welcome, Monica. Monica, I also want to say that you're also going to be my co-host, so we're going to hear a lot more from you and your story. And but today we are going to talk more about, um, why when we were connecting previously, and you felt like you said one thing to me, which was tarot readers are not God. And I think that's something that we really want to unpack today through this podcast. So I know that you've covered a little bit about yourself at the start, but why don't you tell us and just talk about your journey? Ki कैसे आए आप tarot reading में, or did this happen to you, or you happened to it? Like, where what do we know about this? Thank you for asking, but it's a long, long journey. But I'll try to make it short. And the topic what we both are going to discover is a very interesting topic because of lately I've been seeing many podcasts where people are, roasting astrologers, tarot card readers, and I don't say no to it. But I have my part in that where I can add my views to it. So we'll definitely come to that point, and I'm eagerly waiting as you're waiting. And about myself, yes, how tarot happened, that's very interesting. It happened somewhere like 2008, 2009. It happened to me. And so people generally seek these kind of advices or suggestions or forecasting when they are actually going through a lot of mess in their life. And same thing was happening to me. I was going through divorce. There was another person coming in my life. I was working, and my environment was very toxic. I was not able to perform, and many things were going on. And I just happened to see because my present husband or current husband told me that why don't we go to a tarot card reader? This is the message I've got here. They say that she would be probably having a solution to all our problems, and I was like, okay, there's no harm in trying. But I had no idea how tarot worked. Uh, at that time, when I was introduced to a tarot card reader, for me, I very, very barely I remember it used to be about cards and images are there and nothing more to it I knew about tarot. And I was very religious person, but I wasn't very spiritual at that time. But I was very, very religious at that time as well. So we happened to meet this tarot card reader, and that's where I started.
entering into my spiritual journey. So, tarot is not only cards of fortune teller, it is the key factor of my spiritual journey. Because when I used to meet the tarot card reader, I was associated with her for a very long time. She was very good. At the time, after a while, we were not interested to know the future. Only talking to her was very therapeutic. But when the cards used to fall, I was very intrigued. Why this fell? Why? What happened? What does it mean? And now, when I look back, I remember High Priestess used to fall a lot for me. Now, High Priestess is a major arcana card in tarot. It's if you see, series wise is number three, by number it is two, and that is also, it's talking about your spiritual journey. And I have and tarot definitely, because the lady has a Torah in her hand. And I was very intrigued with that image. And I used to say, I mean, she used to look very beautiful to me, very gorgeous to me. And I used to keep asking my tarot card reader, what does she mean? What does she mean? But having said that, there were, the flowers started blossoming, and I was getting attracted towards tarot, and I wanted to learn tarot. And when I was going to my tarot card reader, at that time I was introduced to the 9 point meditation, but I had no idea what meditation was. But that was the first time I was introduced to it, and now there is no looking back. So that's why I say tarot was my spiritual journey key factor. And then when I learned, my guru, Sweetie Rao, she has been really, really nice. What she has taught me is out of the world. Hats off to her, her patience, and the discussions which we used to have while learning. Whenever I teach tarot now, I remember her. I take her grace and in my awareness, in my mind, in my heart. So the journey has been very interesting. And then after that, no looking back. So, and I learned tarot, but I never started doing it commercially because I was working. I was into enterprise sales, and I used to get barely some time to do readings. But I used to do it within the close knit for my friends and all. And then I started seeing the things started moving for the people. Whatever I used to see in the cards, started coming true. Most of the time, not that 100%, but yes, most of the time I started getting very positive feedback. And my teacher used to say, connect with your cards, connect with your cards. And I used to say, how do I connect with my guy? I hardly have time to connect with myself. How do I connect? Now, after so many years, I do understand that what the connection means. And very interestingly, one thing I would like to share for all the tarot card readers who are there, who are aspiring, who want to become. So when she was teaching and she used to remove the spread, she used to say, now explain the spread. So I used to say, ये होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए. And now then she used to come into the picture and explain the same spread. She used to take half an hour, 45 minutes. She's explaining and explaining. And I used to look at her. I said, यार मैं स्टोरी कैसे बनाऊंगी मैम? मतलब her name is Sweetie Rao. I used to call her Sweetie. यार कैसे बनाऊंगी स्वीटी मैं स्टोरी? है ना, तुम तो अब बोली जा रही हो, मैं सिर्फ देख के बता देती हूँ. And then I'm not less now. I take maybe sometimes an hour to explain a spread. So she used to tell me, have patience, have patience. She used to call me Queen of Wands. Because there's a card in tarot. People who know tarot, they would understand what she meant to say. And you think, my Queen of Wands, stop, everything will come to you. And thank you, sweetie, if you're listening to this, in highest gratitude to whatever you have taught. And then boom, I I was thrown out of my company one fine day, and I was manifesting to be out because I wanted to start my spiritual journey. I wanted to do my workshops and all. I wanted to heal people. I wanted to make some difference and hold the space for people. And when I was asked to leave, that time I was no performer. That's why I was kept under PIP. And recently, I saw myself on number 5 in top 5 in Bombay tarot card readers. So
Non-performers, they perform. That's their performance. I was very, very thankful to the people who actually helped me getting out of that place. So yeah, the journey has been very interesting, and it So has Monica, I'll been, yeah, sorry. take a pause because this is extremely interesting to me. I know that you started off the story saying that people kind of try and find these like tarot reading or even astrology or things like that when they're in distress, right? So they are not, कुछ तो परेशानी है उनकी लाइफ में, the life has been very unfair to them, and for you it was, when you had a toxic environment already, and which meant you were somewhere headed towards being that non-performer, and now you are like, life has gone a full circle Yeah. through this journey for you, and it just seems, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब कैसे आपको एक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि यार लाइफ क्या कर रही है मेरे साथ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नेसेसरीली अंडरस्टैंड दैट, उनको लगता है कि मतलब सबसे खराब जिंदगी में मेरे साथ ही हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल लूज ट्रैक, बट आपने जो उस चीज को कन्वर्ट किया है एंड हाउ यू हैव pursued with patience, I think the good part was you also found passion in between, and you've kind of turned it around to now become a leader in something that you do, and which is extremely reassuring, I think, for people who could be listening to this, to say लगता है कभी कभी कि हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा है, थोड़ा समय, थोड़ा परसिवियरेंस, थोड़ा एफर्ट दें तो जी, बहुत कुछ बदल सकता है आपकी जिंदगी में, आप कहाँ के कहाँ जा सकते हो, यू नीड टू फाइंड योर कॉलिंग एट जी। एट टाइम, सो बिल्कुल रियली बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे really nice. I think the other thing that so we can say that you found tarot reading first, and then it kind of also found you, and हैं। Yeah, um, yeah. so I think the other word that you also said was a little bit around spirituality, right? So आई पर्सनली, शायद मैं भी उस वर्ड को बहुत लूजली यूज करती हूँ, बट मे बी आई वुड ऑल्सो से कि हाँ, मेरे लिए इजी है मंदिर के सामने खड़ा होना और हाथ जोड़ के पूजा करना, दैट आई ऑल्सो कंसिडर एज रिलीजियस, बट क्या है स्पिरिचुअलिटी, लाइक कहाँ पे मुझे फर्क पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअल है और ये स्पिरिचुअल नहीं है, लाइक इज देयर अ डिमार्केशन और हाउ डज दैट वर्क? So, क्या आउट ऑफ खूबसूरत स्वीटेस्ट सवाल क्वेश्चन पूछा। बट हाँ, क्या वेरी go ahead. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कृति, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। या स्पिरिचुअल तो अगर मैं सही बताऊं लोगों को, तो टैरो की जरूरत भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो आई एम किकिंग, यू नो, आई एम किकिंग माय ओन स्टमक हियर राइट नाउ, बट यस, दैट्स द मैजिक ऑफ connecting with yourself. So spirituality कुछ भी नहीं है, spirituality is connecting with yourself, being in now, and just trusting the process, because जब आप आपसे connect होते हो, आपके पास कोई दूसरा option नहीं है than to trust. Because the more you, for example, if I meet you more and you meet me more, we both will know each other on a different level altogether, right? You Hmm. would be comfortable talking to me, I would be comfortable talking to you, or I will not be comfortable, or you will not be comfortable, पर एक दूसरे को जानना जरूरी है। ठीक हाँ. है, तो अभी के समय में वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी आर सो बिजी जजिंग अदर्स कि हम अपने आप को ही अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज मोर कनेक्टिंग विद योरसेल्फ एंड नो रूल्स एंड नो रेगुलेशन। इट ओनली सेज कि भाई जस्ट, you know, you work with your awareness and you work with your breath, and that's where it gets you back to the, you know, to the now, and there where the magic happens। रिलीजियस होना तो बहुत ही अच्छी बात है, भक्ति भाव एक स्पिरिचुअलिटी की तरह जाता है, Hmm. बट भक्ति भाव में एक आइडियल होता है आपके सामने, और आपके एक Hmm. एक सेट ऑफ रूल्स होता है, आप ऐसा करेंगे, बिकॉज इट कम्स ऑल्सो फ्रॉम फियर। इवन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी और इवन द अननोन इज फियरफुल। ठीक है, तो जब हम एक रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने सुना होगा नहा के ही पूजा करनी है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहा के ही मेडिटेशन करना है।
आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल विल लाफ विद मी। जब आई यूज्ड टू वर्क एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस 9 पॉइंट मेडिटेशन, मैं तो बाथरूम में करती थी। एंड देयर वेयर आई मैनिफेस्टेड एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज द मैजिक, this is the magic, right? And now after that, definitely now I have learned about it and understood about it. Now I'm into kriya, and I am into kriya yoga and kundalini and xyz. So abhi to understanding different hai, but the people who are beginning to become spiritual, वो कहीं भी कर सकते हैं, कोई कोई पाबंदी नहीं है, कोई क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में थोड़ी पाबंदियां होती हैं, क्योंकि वो फियर Mm-hmm. लाना जरूरी है। जब लोग अपने आप से कनेक्ट होना, दूर होना शुरू हो गए, तो समाज ने सोचा कि इनको डराएंगे ना तो ये थोड़ा एकाग्र रहेंगे। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हैं, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, जब तक आप भगवान के पैर पड़ रहे हैं, आप वहीं होते हैं। आप आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं, आप भगवान को ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वाह वाह बड़े सुंदर है, आप सिर्फ बात कर रहे हैं। अब हनुमान जी को बोल रहे हो कि यार प्लीज रिजॉल्व माई इशू। भगवान काहे प्रभु, क्यों? आप प्रभु Yeah. को ये नहीं बोलते प्रभु क्या आप बहुत लाल दिख रहे हैं, बिकॉज द मोमेंट आई सी यू एंड यू सी मी, हम लोग का हमारा वो एनालिटिकल दिमाग शुरू हो जाता है ना। उसका Hmm. मैलिफायर इंटेंशन है, उसने ऐसा क्यों बोला, Hmm. उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, टू मैनी और जजमेंट्स, रेजिस्टेंस बहुत आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी Correct. इज नो रेजिस्टेंस, रिलीजियस इज लिटिल रेजिस्टेंट, क्योंकि चप्पल उतार के जाएंगे, है ना। आप कभी भी Hmm. देखिए, पहला पैर पड़ेंगे, Hmm. नहाने के बाद ही मंदिर जाएंगे, दिया ही जलाएंगे। स्पिरिच तो रिलीजियस रिलीजन, So I think सॉरी या अगर जैसे आई एम जस्ट कनेक्टिंग कि कल मैं खड़ी हुई थी और मुझे मतलब थोड़ा सा आई थिंक शायद मैं मेरी बेटी के साथ पार्क में थी एंड शी वाज स्विंगिंग मी ऑन द स्विंग एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल क्योंकि फिर मैं खाना खा के गई थी बट देन आई स्टूड देयर एंड आई जस्ट just centered myself. I took a few deep breaths and I said, it's going to be okay. Let's go back to home. And I think that connecting, taking a deep breath, understanding how my body was responding, do you think that itself is like connecting to your spiritual self, or is it यस is it a little यस bit more than that? नो सो देखिए, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, रिलीजियस चीजों में जब आप कुछ कर रहे होते हैं, मैं रिलीजियस चीज को आउटराइट नहीं कर रही हूँ। मैं अभी भी Hmm. पूजा करके ही आपके सामने आई हूँ। मैं अभी Hmm. भी 9 दिन का व्रत कर रही Same. हूँ। मैं अभी भी महाकाल और काशी विश्वनाथ और मैं सारे मंदिरों में जाती हूँ। तो आई एम स्टिल वेरी रिलीजियस, वेरी वेरी रिलीजियस, है ना। Mm-hmm. क्योंकि एक उसमें मर्यादा है, एक 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 Exactly. एक रूल्स रेगुलेशन है। क्योंकि अगर मैं आपके घर में जा रही हूँ तो मुझे आपके जैसा रहना पड़ेगा, मैं अपने मन की नहीं कर सकती, और सेम आपको भी करना पड़ेगा। तो यदि मैं प्रभु के पास जा रही हूँ तो जो उसके एक नियम बने हैं वो पालन करने पड़ेंगे, कि आपको नहा के जाना होगा, शराब पी के मांस खा के नहीं जाएंगे, आप अच्छी बातें सोचेंगे। ये एक एक मर्यादा है उस जगह की। स्पिरिचुअलिटी में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ अपने बारे में देख रहे होते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अपने बारे में है। इट इज नॉट अबाउट अदर पर्सन एट ऑल। एंड दैट्स वेयर द that's where the gyan, the wisdom comes, that everything is you and rest all is illusion, right? Yeah. So there is no Kriti and there is no Monica, there is only Kriti and there is only Monica for each other, right? For Hmm. yourself and for myself, that is spirituality. तो जब Yeah. आपको लगता है कि सब इल्यूजन ही है और सब मोह Hmm. माया है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है आपका सिचुएशंस के प्रति। Correct. आपको ये लगने लगता है कि ये ओके है, देयर इज अ रीजन व्हाई समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। Hmm. आप लेट गो जो है ना, वो मक्खन जैसा, एकदम रेत जैसा करते हैं। Ah. लेकिन अगर आप रेजिस्टेंट हैं, देन आई विल नॉट फॉरगिव यू। मैं क्यों फॉरगिव करूं? शी विल पे Right. व्हाटएवर शी हैज डन। आई मीन, अगर मुझे जॉब से निकाला फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बैंड ही बजा Hmm. देनी चाहिए बोले, मैं क्या मतलब, कोई भी बुराई करते करता हैं है, लोग इसका ऐसा हो जाए, बिल्कुल उसका वैसा हो जाए। पर बिल्कुल आई एम सो मच इन ग्रेटिट्यूड कि भाई तुम वो करते नहीं तो मैं यहाँ होती नहीं। एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई विजडम, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी हैज टॉट मी। spirituality has done for you. Oh, अभी that भी is अभी भी lovely. प्रति गुस्सा आता है, अभी भी Hmm. बुरा लगता है, अभी हाँ. भी डाउन होती हो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे मतलब धर्मात्मा बन गई हूँ और देवी हो गई हूँ। नो 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 नो, आई स्टिल कमिट मिस्टेक। Yeah. बट अभी जो वो पैमाने हैं ना, वो कम हो गए।
जहां पे So कि I मैं, think that या that leads me to sort of the next question. I think and you're kind of inching towards that skepticism as well कि भाई गलतियां होती हैं, लाइक एज अ टैरो रीडर आपसे भी होती हैं एंड हमसे भी हो, मतलब हम तो लाइफ को परसीव ही नहीं कर रहे क्योंकि हम शायद उतने स्पिरिचुअल लेवल पे कभी कनेक्ट होते, कभी नहीं भी हो पाते हैं, राइट? सो आई थिंक do we want to take like a little step back and first maybe talk about what tarot is, and then also kind of maybe Monica also dive in then later on to why the tarot readers are not god, क्योंकि अभी आपने कहा कि गलतियां आपसे भी होती है, बिल्कुल होती है, एंड दैट आई थिंक इज द ह्यूमन नेचर। सो हम उसको अनपैक करेंगे, बट पहले हम कैन वी टॉक अबाउट, व्हाई डोंट यू टेल आवर रीडर्स अबाउट व्हाट टैरो रीडिंग इज, क्योंकि ये सवाल मैंने जब पहली आपसे रीडिंग ली थी तब भी मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा मुझे एस्ट्रोलॉजी पता है मोनिका, बट ये टैरो रीडिंग क्या है, मतलब मुझे आपसे क्या अलग मिलेगा, आई डोंट नो, सो या व्हाई डोंट यू शेयर दैट? Sure. So tarot reading, first of all, ये पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होता है, मेजर आर्काना माइनर आर्काना से होता है। तो मेजर आर्काना का जो बाइफिकेशन है वो एक सोल जर्नी है। सो एवरीबडी इज ऑन अ सोल जर्नी। अच्छे बुरे सारे ही जीवन के पड़ावों से होते हुए एक बंदे की जर्नी कंप्लीट होती है। दैट्स व्हाट द फुल जर्नी स्पीक्स इन शॉर्ट। दैट इज व्हाट वो आपके कार्ड्स होते हैं जो मेजर आर्काना होते हैं। माइनर आर्काना में 4 सूट्स होते हैं, सॉर्ड, कप, वॉन्ड और पेंटिकल। हमारी जिंदगी की 4 जो जो पिलर्स हैं, जो दिमाग है, विजडम है, एंड दैट इज द सॉर्ड। जो कप है वो इमोशंस है, जो पेंटिकल है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, पैसा रुपया है, और कप्स जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर इमोशन है, वो हमारे इमोशन को दिखाते हैं। तो इन सारे ही कार्डों का समावेश करके हम लोग एक स्प्रेड निकालते हैं। उस स्प्रेड में हम कार्ड्स की पोजीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, तो मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल सकती हूँ। एक स्प्रेड है, और ये स्प्रेड ठीक वैसा ही होते हैं जैसे कि अ, हमारे स्वस्तिक के निशान होता है ना। हमारे कुछ ऐसे स्वस्तिक का निशान, क्यों स्वस्तिक का निशान है, क्योंकि वो एनर्जाइज्ड हो चुका है इतना ज्यादा, उसको पता नहीं हजारों लाखों, आई हैव नो आइडिया कि लाख साल थे कि हजार थे, बट जितने भी सालों से चला आ रहा है, स्वस्तिक वो इतना पावरफुल हो गया है कि अगर स्वस्तिक का निशान है तो हमको समझ में आ जाता है, हमारा दिमाग, हमारा रोआ रोआ समझ जाता है कि वो यहाँ पे कुछ पवित्र है, यहाँ पे कुछ सुंदर है, करेक्ट। यहाँ पे कुछ लक्ष्मी का है, यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे खूबसूरती है। और बिना बिना सोचे समझे भी आप मतलब आप नमन करते हो कि स्वस्तिक वहां पे है। स्वस्तिक जैसा डिजाइन है, बिकॉज वहां पे एक बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, ठीक वैसे ही ये कार्ड्स के लिए स्प्रेड होते हैं। तो वो एनर्जाइज हो चुके हैं, क्योंकि वो भी 300 साल 500 साल से लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं टैरो, उसमें ये निकल के आता है, तो वो पावरफुल स्प्रेड्स हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको बता देते हैं, लेकिन आप आपके खुद भी स्प्रेड बना सकते हैं द मोमेंट यू टेल द कार्ड। बिकॉज जब आप कार्ड से आप क्वेश्चन सवाल पूछ रहे होते हैं, तो कार्ड जो होता है वो सुन रहा होता है, एनर्जीज पास हो रही होती है, जो भी स्टोरी आप बता रहे होते हो कार्ड ले रहा होता है, और कार्ड गिर रहा है मतलब वो आपको कुछ बता रहा है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, एवरीथिंग। अगर उस लॉजिक से हम चल रहे हैं, तो जैसे ही आपने सवाल पूछा और जो कार्ड गिरा वो आपके किसी उत्तर की तरफ इशारा कर रहा है। सिंपल, टैरो बस इतना सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी इज कम्प्लीटली साइंस। मेरा बहुत बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में, इट्स कम्प्लीटली साइंस। पर एस्ट्रोलॉजी आपको ये नहीं बताएगा कि बाल कटवा लीजिए, इस बाई को रख लीजिए, ये सब एस्ट्रोलॉजी इतना डीप वो नहीं, इतना डीप नहीं मैं बोलूंगी, इस लेवल पे नहीं करता है वो आपको एक 360 डिग्री व्यू बता रहा है, वो पूरा साल बता रहा है। टैरो आपका हर जवाब बता रहा है, कि हम ये पॉडकास्ट करें कि नहीं करें, तो भी टैरो में जवाब मिलेगा आपको। और टैरो में ये भी जवाब मिलेगा कि अगर इसका आउटकम अच्छा नहीं है तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। राइट। तो ये है टैरो इन शॉर्ट।
if I could explain myself. And I think again, sort of going back to our own experience की आपने मुझे मेरे कार्ड के हिसाब से तो मुझे जवाब दिया था, but then you also helped me connect with the actual realities for Right. that, and you helped me navigate through that decision as well. So I Right. think डेफिनेटली मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ और मैंने आपके साथ टैरो रीडिंग भी किया है. सो आई फील दैट आई कैन एक्चुअली मेक आउट कि बहुत डिफरेंस है, लाइक द काइंड ऑफ बहुत क्वेश्चंस जो आप इससे एड्रेस कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप एस्ट्रोलॉजी से एड्रेस कर सकते हैं. That's brilliant. So 78 cards. right. And they're very powerful to kind of tell us, help us, I think, navigate through some of the key decisions, key points of our life. Yes, बिल्कुल. Absolutely. And, Absolutely. and so I mean, the other thing that you said कि बहुत सारे लोग आज तक इस चीज को प्रैक्टिस करते आए हैं, लाइक सालों सालों से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे. तो क्यों, डू यू वांट टू एड्रेस द क्वेश्चन कि क्यों लोगों को इसके बारे में स्केप्टिसिज्म भी है? और आई थिंक कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो या आप इतने अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो तो आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर लेते, है ना? Yes. व्हाई आर यू नॉट द बेस्ट person in the world, for example? So Yeah. I mean, how do you tackle that question, Monica? तो कृति, पहली बात तो कोई भी भगवान नहीं है और कोई भी 110% राइट नहीं होता है. 110 क्या 100% भी राइट नहीं होता है कि आपने बैंग ऑन कर दिया और ऐसा सब कुछ हो गया. पहले बात तो आपको आपको कार्ड से और अपने आप को अलग ये करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक चैनल है. जैसे एक टीवी के ऊपर आपने नेटफ्लिक्स चलाया, जो कंटेंट उसके ऊपर है आप सिर्फ उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपके तरफ से वो दिख रहा है. तो पहली बात तो आप ये समझ लें, जब भी आप एक टैरो कार्ड रीडर बनते हैं तो आप एक चैनल हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स कुछ मैसेज दे रहा है और वो कार्ड के और आप जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उस बंदे को बता रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ईगो को थोड़ा आपको साइड में रखना पड़ता है एज अ टैरो कार्ड रीडर. आप लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना ही जिंदगी ठीक कर लो, तो देखिए यहाँ पे ज्ञान आता है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का को की समझ यहाँ पे काम आती है कि जिंदगी में जो लिख दिया गया है ना उसको तो ब्रह्मा भी नहीं हटा के आके मिटा सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि, मैंने ही ये सोल जर्नी डिसाइड की है, मैंने ही ये डिसाइड किया था कि ये समय पे मैं कृति के साथ पॉडकास्ट करूंगी. तो अहम ब्रह्मस्मि, ये मैंने कुछ सोच समझ के कुछ कर्मों के चलते मैंने ये डिसाइड किया है, तो मैं बदल तो नहीं सकती. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी आपको थोड़ा इम्पैक्ट कम करना है. ये जो प्रेशर मेरा ये जो पॉडकास्ट है ना 15 मिनट का होना चाहिए, तो आप कृति को बोलोगे कृति व्हाट टुडे आई हैव ओनली दिस मच ऑफ टाइम, हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, आज ये करते हैं, हम लोग कल वो करते हैं, प्रॉब्ली आई विल कम आउट विद दैट काइंड ऑफ आइडिया एंड यू विल से या यू माइट से यस, यू माइट से नो. तो लोग आपको सजेशन और गाइडेंस दे सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, पर आप ये बोलिए कि वो एकदम निकाल ही देंगे आपके जीवन में, तो मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से. इस जीवन में निकालेंगे तो आपको आगे चल के किसी एक जगह पे आपको वो दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा तो कहीं और आपको ये दिखेगा. और उसके इम्पैक्ट को कम करने की अपेक्षा आई थिंक सो पर्सन शुड जस्ट टेक इट हाउ इट इज गोइंग. अगर गाइडेंस आपके खुद ही चल के आ रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बट लोग इसलिए थोड़ा डर जाते हैं बिकॉज एस्ट्रोलॉजर और ये वाली जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर, ये बड़ी फियरफुल इंडस्ट्री है. लोग डरा के ही अगर डर है तो वहां पे मेरा काम हो जाएगा. अगर मैंने आपकी रीडिंग की और मैंने आपको बोल दिया ओहो हो ये तो बहुत ही गड़बड़ है, आपको तो कुछ करना पड़ेगा, तो आप मुझसे करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपके दिमाग में अब वो खटका जरूर आ जाएगा, तो अब आप उसी बारे में सोचते रहेंगे. तो हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोगों से हो जाती हूँ कि डराइए मत. और अगर आप डर रहे हैं उस किसी भी रीडिंग में या एस्ट्रोलॉजी में, तो वो जगह उचित नहीं है, आप वहां से निकलें, क्योंकि ईश्वर ने आपको बड़े ही प्यार से बनाया है और बड़ी ही शिद्दत से बनाया है. उनका उद्देश्य ही नहीं है कि आपको कष्ट दें. और जो भी हो रहा है जीवन में वो आप स्वयं डिसाइड कर चुके हैं, तो अगर ये आप ही की जर्नी है तो
डर किस बात का? आप ही हैं जिसने ये डिसाइड किया हुआ है। तो जस्ट गो हम्म। ऑन विद इट एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। लोग शायद, मुझे लगता है इतना ज्यादा और हाँ, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब मेरे भाग्य में ही अगर लिख दिया है कि भाई मेरी जर्नी टफ होने वाली है, तो भले मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, भले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, भले मैं डॉक्टर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, वो टफ फेज मुझे निकालना ही पड़ेगा। दैट इज वाई व्हेन पीपल से कि टैरो कार्ड हो तो अपनी जिंदगी बदल लो, कौन कह रहा है कि हम किसी की जिंदगी बदल रहे हैं? हम हम्म। सिर्फ बता रहे हैं। अब आईना थोड़ी ना बोलता है कि आप अपने आप को सुंदर बताओ, आईना सिर्फ आपको दिखा रहा है। आप आईने करेक्ट। को देख के बोलते हो अच्छा अच्छा ठीक है, आज मुझे आईब्रोज बनानी है, अच्छा आज अपर लिप्स भी कराने हैं, आप ऐसे ही देखते हो ना आईने को। या आपको लगता है अरे बिल्कुल। थोड़े ग्रे हो गए हैं, चलो उसको ब्लैक करना है, या जो आपको दिखता है कि अरे एक्ने हो रहा है, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट। हम्म। यू लुक एट द मिरर एंड देन यू टेक अ कॉल, एंड दैट इवन गोज फॉर योर वेट। यू से नहीं नहीं, इस कपड़े में अच्छी नहीं लग रही है, नहीं नहीं मुझे तो कल से जिम जाना है। एवरीथिंग द मिरर इज टेलिंग यू, हम्म। राइट? सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट। ये जो लोग दावा कर लेते हैं कि जिंदगी बदल लेंगे, तो मुझे लगता है मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप काफी हद तक अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, एंड आप बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, सकारात्मक। हम्म। एंड आई थिंक मुझे सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक ये चीज मेरे लिए अपनी एक नई लर्निंग है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब दिस इज अ जर्नी दैट I have written for myself. So um, thank you for sharing that. And I think सच बात है, मतलब एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि हम खुद से खोजते हुए आए हैं उस चीज को आपके लिए। अब हम खुद उस सवाल का जवाब नहीं जानते, इसलिए ढूंढते हुए आए हैं। एंड आई थिंक जैसे डूबते को तिनके का सहारा शायद बहुत होता है, मतलब वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, आप उसको चैनल करके अपने थ्रू आप उस चीज को जब शेयर कर रहे हैं, तो आप एक कोशिश कर रहे हैं। हाउ आई परसीव दैट इंफॉर्मेशन, मैं उसका क्या करती हूँ, वेदर आई आई वांट टू टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट इन माय डिसीजन मेकिंग, ये मेरा अपना चॉइस है। और या फिर मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहती हूँ, तो ये अपना चॉइस है। एंड आई थिंक यूर ऑल्सो राइट, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे फियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, अरे अब ये होने वाला है, तो अब आप देखिए जीवन में क्या होने वाला है, भगवान बिल्कुल। जाने। मतलब उनको वैसे, मतलब ऑनेस्टली मेरे दिमाग में भी कभी कभी, मोनिका बी वेरी ऑनेस्ट, ये ख्याल आता है कि मतलब जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे उनपे ज्यादा गुस्सा आता है, जो कहते हैं कि बिल्कुल। हाँ भाई आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। भाई अपना जीवन देख लो पहले, फिर दूसरों को हाँ बिल्कुल, बताओ। एग्जैक्टली exactly. तो देखिए अभी फॉर एग्जांपल पे आपको एक चीज यहाँ पे आपने बहुत बड़ी अच्छी बोली, एंड थैंक यू फॉर गेटिंग इट टू माय नोटिस, जो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का समझना। तो जब और हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं, तो हम लोग उसको वैल्यू एड सर्विस हम्म। कहते हैं। जब मैंने आपको डरा दिया, मैंने मेरा दूसरा प्रोडक्ट आपको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ अरे सक्सेस तो नहीं दिख रही है, बड़ी मुश्किल लग रही है, चलो कैंडल मैजिक करते हैं। हम्म। There is another product, a byproduct, which I'm selling it to you. हाँ, कभी कभी आपको ऐसा दिखता है कि ये करने से, आप देखिए 100% गारंटी जो लोग देते हैं ना, मुझे उनसे थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि अगर 100% हो जाता तो लोग कोई मरते ही नहीं। सब हम्म। उस एक जोशी को भी रखते जो कभी किसी, जो खुद नहीं मरेगा और दूसरों को भी नहीं मारेगा। तो सही बात। ये ना, तो आज भारत की जनता 130 करोड़ ना होके पता नहीं कितने करोड़ हो चुकी होती। लेकिन लेकिन देखिए, एक एक जीवन का एक पूरा स्टेप्स आते हैं आपके। बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और फिर मृत्यु आती है। ये पूरा कोर्स आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, है ना? उसमें आगे पीछे सब कुछ होता रहेगा। अगर मैं एक दूसरी बात आप लोगों को बताऊं, और आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, जो जितने गुरुज हैं, है ना, जैसे देवराहा बाबा हो गए, परमहंस जी हो गए, योगा परमहंस जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, मेरे ख्याल में उन्होंने कभी अपना हाथ किसी को दिखाया नहीं। दो दो गुरु जी, बिकॉज आई फॉलो योगानंद परमहंस जी। हम्म। जो वो ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस, उनकी एक स्पिरिचुअल बुक में मैंने पढ़ा था। बट हैविंग सेड दैट, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज इफ यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ एंड यू आर डूइंग द मेडिटेशन। इसलिए आप देख लो कि जितने साधु कुंभ में आते हैं, ये मतलब ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनका कोई भाग्य है कि नहीं है? इनको
ये उस लेवल पे रेडिएट और वाइब्रेट करते हैं कि इनको आवश्यकता नहीं होती, क्या इनके जीवन में रेखाएं नहीं है, क्या इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? बट हम्म, सिंस यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, विद योर ट्रू सेल्फ, विद डूइंग मेडिटेशन थ्रू आउट, आप सिवाय ध्यान के कुछ सोच ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो तो इनके ऊपर, इनको एक तो जरूरत नहीं है, दूसरा काम भी नहीं करती है ना? हम्म, तो हाउ दिस सेक्ट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग? अगर मेरे पास yeah, कोई टैरो वाला आता है, इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड दीपा, शी फोर्स मी कि तुम कमर्शियली करो, नहीं तो मैं तो सिर्फ मेडिटेशन सिखाना चाहती थी, टू बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट। बट दीपा हम्म, मोतवानी इज माय फ्रेंड, शी इज नो नो नो, डू इट कमर्शियली, कमर्शियली। तो मेरा बस चले, मैं तो लोगों को सिर्फ मेडिटेशन सिखाऊंगी, पूरी इसमें सब कुछ है, यू नेम इट एंड यू हैव इट। अब yeah, लोगों ने अंडरस्टिमेट भी किया हुआ है कि ये तो सिर्फ पीस के लिए, पर मेडिटेशन इज बियॉन्ड, बियॉन्ड दैट। लेकिन वही है, लोग डरते हैं तो लोग डराते हैं, और लोग डराते हैं तो कमाते हैं। ये इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है। तो कैसे, आई थिंक एक चीज मेरे दिमाग में जनरली एक क्वेश्चन रहता है मोनिका कि भाई डर भी है, ठीक है, मतलब there are real threats in life that are probably approaching you, and some of the people who like yourself can actually see that in reality and would like to warn people, और शायद आपके पास ओवर द टाइम कुछ ट्रस्टेड रेमेडीज भी हैं जो कि इन चीजों को प्रिवेंट करने में या उनका इम्पैक्ट कम करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट? सो अगर एक एक आम बंदा है लाइक मेरी तरह जो कि इस चीज को नहीं जानता, आई डोंट नो द वर्ल्ड ऑफ द गुड वर्सेस द बैड, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि ये आदमी मेरे हिसाब की बात कर रहा है, मेरे लिए सही गाइडेंस दे रहा है? और शायद ये अगर गोइंग बैक टू योर एग्जांपल कि ये एक वैल्यू एड सर्विस नहीं है, बट ये लिटरली विल एड वैल्यू टू माय माय जर्नी, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, मुझे ये करवा लेनी चाहिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है कि मैं उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दूं तो शायद मेरे लिए कुछ आउटकम बेटर होगा। तो एग्जैक्टली माय exactly. तो क्वेश्चन इज कि देखिए, कैसे डिफरेंशिएट करूं मैं इसके बीच में कि कौन मुझे सही गाइडेंस दे रहा है, कौन नहीं, फॉर अ ट्रू फियर दैट दैट कुड बी दैट आई शुड हैंडल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज अच्छी करने के लिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कृति, दैट वी आर थिंकिंग that the thing which is coming ahead of us is going to be bad, because we don't know. When we don't know, that is 110% which a normal human being thinks, that it is very fearful, and fearful is negative. ये unknown है ना, so the fear is because of the unknown. तो unknown तो अच्छा भी हो सकता है. Why unknown bad only? Unknown might be good also. Why you have to say it? Oh, you as in why it is bad? तो हम लोग known और unknown से तो एक तरीके से वाकिफ हो जाएं कि भैया, why do be fearful? दूसरा, अगर आपके आपको बस आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेमेडी तो दी है, आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर वहां पे आपको शांति नहीं मिल रही ना, तो समझ जाने का कि अभी रुक जाओ। बिकॉज देखिए, अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं, अब देखिए कैंडल मैजिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, तो क्योंकि उसमें आप ही कैंडल जला रहे हैं, या लोग अगर आपके लिए जला रहे हैं, आई वुड स्टिल प्रेफर अपने आप जलाएं और अपने आप करें, बिकॉज दैट इट सेल्फ इज अ त्रातक क्रिया, अब त्रातक का एक रूप है, you know. Candle magic, you're looking at the candle, you're just looking at the flame, and you're just kind of being there, being present on that is meditation, bhai. That is meditation itself, that you are getting connected to that. लेकिन आप बड़े बड़े आप बहुत खर्चे वाले चीज बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो इतने का पन्ना पहनिए और whatever something, if it is not suiting your budget and if it is not suiting your mood, आपको समझ जाना चाहिए कि कोई नहीं, आई विल स्टार्ट चेंजिंग माय लाइफ थ्रू अफर्मेशन एंड मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड पीपल हैव सीन लॉट ऑफ रिजल्ट। मैं बोलूंगी ये ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि आप अगर इस राह पे चलते हैं, तो आपको सिर्फ वही स्थिति आप ठीक नहीं करोगे, आप पूरा जीवन अपना सुधारने लगोगे, है ना? Because your What you're mind. saying is कि आई थिंक टू थिंग्स, वन आई थिंक इज कि पहले तो विश्वास करो कि जो अननोन है जो वो कह रहे हैं वो
अभी हो सकता है इट कैन बी गुड और बैड. सो आपको लग सकता है कि जैसे आपके सिनेरियो में वेयर वी स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, मोनिका, यू सेड कि योर लाइफ फेल्ट रियली बैड. आज तक आपको उसके बारे में गुस्सा आता है. It's a major event in your life, but then it actually turned out to be really good because now you're Yeah. succeeding in life as well. um, I think दूसरा जो आपने की मैसेज मेरे हिसाब से बोला was कि जहां पे you are getting committed in that activity, in that exercise, and where it establishes a connection to you, I think that is probably a safe thing to do, because आप उस meditative state में जब आप जाते हो, या आप अगर कोई ऐसी क्रिया कर रहे हो, कोई ऐसा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो, आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आई थिंक दैट इज कनेक्टिंग टू योर स्पिरिचुअल सेल्फ. और कुछ नहीं भी होगा तो इट विल मेक यू फील गुड अबाउट spending that time Yeah. with yourself. So I Yeah, think and those are the things जो कि कर सकते हैं. और तीसरा absolutely. जो शायद आपने कहा was also कि अगर कभी लगता है कि नहीं भाई नहीं है पैसे या कुछ नहीं आप कर सकते जो बता रहे हैं, तो there are alternate methods, like you can go the spiritual way, you can do your law of attraction kind of activities, which are also I think there's a lot of free content available, there is a lot of Free guidance content. available as well, कि आप Absolutely. उसको करना शुरू करो, एक कमरे में बैठ के फोकस करना शुरू करो अपनी ब्रीदिंग पे, तभी आप बहुत कुछ रियलाइज कर सकते हो, एंड you can take some better decisions in the future. So I think those three things are stand out for me. एब्सोल्युटली। और देखिए वो जो बस एक ही बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूंगी, जब आप एस्ट्रोलॉजी में देख रहे हो आपकी कुंडली में जो आ रहा है, अब वो स्टार, वो आपका जो स्टार है, वो जो भी हाउस में वो बैठा ही रहेगा। देखिए उसका उपाय जो जो सरल और सौम्य उपाय है, वो अगर आपको लग रहा है आपके अंदर है, आप वो कर सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। नहीं तो जो भी उस ग्रह के मालिक हैं, जो भी स्वामी हैं, आप प्लीज उनकी आराधना करें। सिंपल तरीकों से भी चीजें ठीक हो सकती है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। Yeah. मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि वो जो एस्ट्रोलॉजी में आपको बता रहे हैं कि समस्या दिख रही है, इसका ये हो सकता है, वो बिल्कुल सच हो सकता है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर मैं बोल रही हूँ सरल तरीके से भी समाधान मिल सकता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डाउट हो या आपको आप कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट योर प्लेस। इनफैक्ट आप भले मेरे से टैरो कराएं या आपको लगे अनकंफर्टेबल, तो आई थिंक सो दैट इज नॉट द प्लेस फॉर यू। यू शुड मूव आउट, आपको कहीं और, फिर किसी और से आपको मिलना चाहिए। यू नो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I think that's the most sound advice I've heard in a long time, and a very very different perspective. So thank you, Monica, for that. um I think should we say we're inching towards the end of our podcast today. अब ऐसे लग And नहीं रहा कृति की खत्म करूं, तुम इतने प्यारे सवाल पूछ रहे हो, दैट आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। लेकिन यस, मेरे ख्याल में अभी के लिए ये अपना मेन एजेंडा था कि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी गलतियां करते हैं, पर हम लोग सिर्फ राह दिखा सकते हैं, राह बदल नहीं सकते। वी आर जस्ट लाइक गूगल मैप्स, यू नो, वी आर नथिंग बियॉन्ड दैट। just like Google Maps. So, guys, I think that is the message we take away today. Go to your tarot reader. They are like your Google Maps, and they can show you the way. But if you want to tread a whole different path, it's your choice. You take the wrong turn. It's your choice. So I think that's a beautiful analogy, Monica. Thank you so much for that. Um, and before I think we wind off, I want to say that we are looking for more stories like this. Again, हमें मुझे और मोनिका को अगली बार, I mean, today we are conversing with each other, but I would like कि हमारे साथ कोई गेस्ट हो, हम आपकी कहानी सुने. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आपको कभी फेयर कभी अनफेयर लगता है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, और या फिर बहुत ही खराब हुआ पर मैंने उसको ओवरकम किया है थ्रू समथिंग, देन वी वांट टू हियर योर स्टोरी. So please feel free to send us your story, or a brief about your story on fairunfairlife@outlook.com, and we would be happy to bring your story here, to even connect with you, to hear your own
your on take on that story. शायद आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. And कोशिश करेंगे हम कि every week आपके साथ ये podcast share करें. Please, if you did like it, do share it with people that you know. And Monica, do you want to add anything else to this? Feel free. Thank you so much, Krati. So me and Krati, we are really looking forward because we love to hear people who have made whatever small difference or big difference in their own life. We consider them, all of them, heroes, and we'd like to know your story and applaud for your story, because I think so that's what made us get into this podcast. We're looking forward. You can DM us. We would be posting our Insta handle for the connection. You can DM either of us. We both are eagerly looking. और भाषा का तरीका हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है. हम दोनों ही ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं, and we are looking forward, and it was pleasure to be here. Thank you so much, Prati. Thank you. Thank you, Monica.